हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी एंड वी नो दैट दिस आर स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, जहाँ पर ये एम का टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n MI/RI। ये आई क्या है, हमने जो n पार्टिकल सिस्टम में रखा था उसमें कोई भी एक जनरल पार्टिकल मान लिया i, और i की वैल्यू क्या हो सकती है, इट मे बी एनी पार्टिकल फ्रॉम 1 to n। यदि हम इस समेशन को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, mn/rn तक। और इसको किससे भाग करेंगे, सिस्टम के टोटल मास से, क्या आएगा हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। नाउ वी हैव टू discuss its motion. Suppose we assume that when some external force is applied on the system, then we assume that there is no change in mass of the particles, that is mass of particles m1 m2 m3 remains same, so total mass of the system also remains same. So we can write this result as vector r is equal to 1 by m into m1 r1 plus this can be written as m2 r2 and so on, और लास्ट में टर्म क्या आ जाएगी, mn rn, और m को हम इधर ले आते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, mr इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन and last mn rn. Now if we assume that when some external force is applied on the system, mass of these particle remains constant. Now differentiating on both sides, यदि हम इसको differentiate कर देते हैं then we will have d by dt of mr is equal to d by dt of m1 r1 plus m2 r2 and finally mn rn, or we can write this as m mass, we can take it out of differentiation, क्या रहेगा हमारे पास में, d by dt of r पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पर इन सभी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, m1 dr1 बाई dt प्लस m2, और यहाँ आ जाएगा dr2 बाई dt प्लस एंड सो ऑन, प्लस में लास्ट टर्म क्या होगी, mn drn बाई dt. Now we know that dr by dt rate of change of position vector and it is called velocity. So r क्या था, पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। सो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे देन वी कैन से दैट दिस डी आर बाई डी टी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ये रिजल्ट क्या होगा हमारे पास में, वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज एम वी सी एम, वेर वी सी एम स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 and dr1 by dt is velocity of first particle plus m2 and dr2 by dt it becomes velocity of second particle and so on, लास्ट में हमारे पास में क्या आएगा, mn vn, this is velocity of nth particle, और we can say that total जो रिजल्ट आया हमारे पास में, this is the result mvcm, where m is mass, v is velocity of center of mass, तो ये क्या बन जाएगा, linear momentum of center of mass is equal to m1 v1, that is linear momentum of first particle plus linear momentum of second particle and so on plus linear momentum of nth particles, right? Now if we differentiate again, यदि हम इस रिजल्ट को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं then we have d by dt of, अगेन m is constant, इसको डिफरेंशिएट करेंगे then we have to differentiate velocity is equal to m1
dv1 by dt plus m2 and it is equal to dv2 by dt plus mn and this is dvn by dt. And now we know that rate of change of velocity is acceleration. So this result can be written as m as it is. This becomes acceleration of center of mass, that is m total mass of the system, and ACM is acceleration of center of mass. It is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus and this is equal to mn an. Now we know that according to Newton's second law, force is product of mass and acceleration. So if we say that m1 a1 is force on first particle and this is equal to force on second particle and this is equal to force on nth particle. So we can say that MACM is equal to F1 plus F2 plus F3 plus Fn. Now what are these F1, F2, F3, Fn? These are force on the individual particle. First particle पे force F1, second particle पे force F2 and so on. So in forces में if there are internal force, तो internal force तो क्या होगा? That will cancel out in pairs. इसका मतलब this is the total external force on the system. अगर हम ये कह दें कि m is mass of the system and ACM is acceleration of the system, so we can say that MACM is total external force on the system. So this result can be written as F external is equal to F1 plus F2 plus F3 plus Fn. So what does this mean? F external is equal to F1 plus F2 plus F3 plus Fn. इसका मतलब क्या हुआ? इसके जो मायने हैं वो क्या निकलते हैं? हम ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इस प्रकार से बिहेव करता है कि जैसे हमने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया हो. सो इट मीन्स इसका जो मीनिंग है वो क्या हुआ? जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड nth पार्टिकल. हर पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स F1, F2, F3 एंड Fn. अब ये रिजल्ट क्या प्रूव करता है कि ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ये इस प्रकार से मूव करता है जैसे कि पूरे का पूरा मास क्या हो, एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास एंड वी कैन से दैट टोटल फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास. यदि हम इन सभी पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करने के बजाय क्या करें, किसी एक पॉइंट पे दैट इज सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करें तो भी जो इसकी जो मोशन है दैट विल रिमेन सेम. सो ये तो हो गया हमारे पास में टोटल फोर्स और ये कहते हैं कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास किस प्रकार से मूव करेगा? इट मूव्स like that total mass is concentrated at center of mass. Now if we calculate total linear momentum of center of mass then we have already derived this expression. अगर यहाँ से हम सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम निकाल लें, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ particles, then we can say that हमारे पास में same system we have a system of n particles. First particle of mass m1, velocity v1. This is second particle of mass m2. Suppose it is moving with velocity v2. Nth particle moving with velocity vn. So from this concept we can say that let m is center of mass of this system. इस सिस्टम के लिए m क्या मान लेते हैं? सेंटर ऑफ मास. और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या मान लेता हूँ मैं? VCM is velocity of center of mass. Then what will be the total linear momentum of the system?
total linear momentum of the system is m1 v1 plus m2 v2 plus and so on, लास्ट में क्या होगा mn vn, और we can say that or mvcm, if mvcm is linear momentum of the center of mass, then it is equal to m1 v1, that is equal to p1 plus this is equal to linear momentum of second particle and so on, this is equal to sum of linear momentum of all particles. So total linear momentum of a system of particle क्या आएगा हमारे पास में, if we have a system of particles then total linear momentum is equal to sum of linear momentum of all the particles, and we can say that it is equal to linear momentum of the center of mass. So यहाँ से क्या प्रूव कर रहा है कि हम किसी सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे, राइट, तो देयर विल बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम. सो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यदि हम सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम निकाल लें या फिर सभी पार्टिकल्स का एक एक पार्टिकल को लें, सभी का लीनियर मोमेंटम निकालें, दैट विल बी इक्वल. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, राइट. नाउ इफ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, और वी कैन से दैट इफ वी डिफ्रेंशिएट, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं देन वी कैन से दैट वेक्टर dp by dt डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं देन वी हैव d by dt ऑफ p1 प्लस p2 प्लस pn, and we know that this d by dt, what is this? This is equal to force. What is force? Force is rate of change of linear momentum. So d by dt को हम क्या कह सकते हैं, dp by dt is force acting on the system. So we can say that dp by dt is equal to external force acting on the system, right. If we say that there is no external force, अगर हम ये कह दें कि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, देन इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर हम यहाँ से ये कह दें कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, सो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, एंड वी नो दैट differentiation of constant d by dt of some constant is zero. Differentiation of constant is zero. इसका मतलब क्या होगा, we can say that यदि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे then linear momentum of the system remains constant. If there is no external force then we can say that linear momentum of the system remains constant, and we know that linear momentum, this p is linear momentum of center of mass, or we can write it as mvcm is equal to constant. M is mass, we know that mass is constant. So if there is no external force, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, velocity of center of mass is constant, and this is a very important result to discuss the center of mass. हमने देखो अल्टीमेटली क्या प्रूव किया, यदि किसी सिस्टम पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, राइट. सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. यदि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट. लेकिन क्या होगा सिस्टम में, देयर आर इंटरनल फोर्सेस, उन इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट में चेंज, बट इट्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट. सो हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि इफ़ ए सिस्टम इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, or we can say that if center of mass is at rest then it will remain at rest, right.
If center of mass is in motion, then it will remain in constant motion. मान लो हमारे पास में ये कोई सिस्टम है, suppose this is a system and there are particles of the system. These particles, if the system is at rest, then velocity of center of mass is also at rest. If these particles are moving, right, and there is internal force, मान लो इन internal force की वजह से these particles are moving at random, but यदि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूसली. सेंटर ऑफ मास will move along a straight line continuously. It means velocity of center of mass remains constant and velocity of center of mass remains constant. इसका मतलब क्या है, देखो, या तो यदि सिस्टम रेस्ट में तो इसका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहेगा. यदि सिस्टम के पार्टिकल इंटरनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, इनका पाथ इंटरनल फोर्स की वजह से दिस पार्टिकल में बी इन एनी स्टेट, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, लेकिन इन सभी को मिला के फिर भी सेंटर, यदि हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे देन इट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन या कंटिन्यूसली अलोंग दैट पाथ. जिस पाथ के अलोंग सिस्टम पहले मूव कर रहा था उसी पाथ के अलोंग सेंटर ऑफ मास मूव करता रहेगा. और इंटरनल फोर्स की वजह से पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास उसी पाथ के अलोंग मूव करता रहेगा. सो वी हैव डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फाइनली हमने क्या प्रूव किया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. नाउ वी विल क्लियर दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. Let us discuss some examples to understand the motion of center of mass. Right? First example है बड़ा simple है और interesting example है. Disintegration of radium nucleus into radon and an alpha particle. Radium nucleus की जब हम बात करते हैं तो रेडियम का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस बाय इटसेल्फ. इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और ये नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे डिटेल में. तो ये जो रेडियम जो हम बात करते हैं, रेडियम न्यूक्लियस का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, दिस इज रेडियम. रेडियम न्यूक्लियस का जब डिसइंटीग्रेशन मतलब ये जब टूटता है तो ये इसके दो पार्ट्स में बनते हैं. एक तो बनता है इससे रेडोन एंड सेकेंड पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल. अब देखो इसका डिसइंटीग्रेशन, अगर हम ये कह दें कि इफ इनिशियली रेडियम न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, इफ इनिशियली रेडियम इज एट रेस्ट, राइट, देन वी कैन से दैट देर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस. देखो ये जो प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन of a nucleus, it is purely the property of nucleus, means there are no force from outside, it is purely property of nucleus. यहाँ पर जो पार्टिकल बनेंगे रेडोन और अल्फा पार्टिकल, इनके बीच में केवल इंटरनल फोर्स होगा, देयर विल बी नो फोर्स फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम. सो वी कैन से दैट यदि सिस्टम रेस्ट में है देन सेंटर ऑफ मास, इन सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी किस में रहेगा? रेस्ट में. सो यदि हम ये कहते हैं कि इनिशियली रेडियम इज एट रेस्ट, तो सपोज दिस इज रेडियम, राइट. जब इसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो एक तरफ तो क्या आ जाएगा? अल्फा पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, और एक तरफ क्या मूव करेगा? वी कैन से दैट दूसरी तरफ मूव करेंगे रेडोन पार्टिकल. एक तरफ अल्फा पार्टिकल और दूसरी तरफ रेडोन पार्टिकल्स. सो व्हाट डज दिस मीन कि एक तरफ अल्फा पार्टिकल गया, एक तरफ रेडोन के एटम आ रहे हैं. इट मीन्स देयर सेंटर ऑफ मास इज अगेन एट रेस्ट. सो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट बिकॉज देयर आर नो इंटरनल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्सेज, केवल यहाँ पर इंटरनल फोर्स है, राइट. एंड वी नो दैट, हमने अभी प्रूव किया कि इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट. यदि सिस्टम रेस्ट पे था तो इनका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ रहा? रेस्ट पे, और ये पार्टिकल बैक टू बैक मूव करते हैं, एक ऊपर की तरफ गया एक नीचे की तरफ, सो दैट देयर सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट. अब यदि हम यही मान लेते हैं कि इफ दिस रेडियम न्यूक्लियस इज मूविंग इनिशियली अलोंग दिस
स्ट्रेट लाइन। मान लो ये रेडियम न्यूक्लियस इस लाइन के अलोंग मूव करता है इनिशियली, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन? सपोज दिस इज रेडियम न्यूक्लियस एंड इट इज मूविंग इनिशियली अलोंग दिस लाइन, राइट? देन डिसइंटीग्रेशन के बाद में क्या हुआ? वी हैव टू प्रोडक्ट ऑफ डीके, एक को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल, दिस इज अल्फा पार्टिकल, और एक तरफ क्या जाएगा? रेडोन, एंड वी कैन से दैट सपोज दिस इज रेडोन, राइट? दीज आर मूविंग इन टू डायरेक्शन such that velocity of center of mass is again along the same direction, because we know that if there are no external force then center of mass, velocity of center of mass remains constant. So इन दोनों का जो center of mass है that will move along the same straight line, right? This is one example of motion of center of mass. Let us take another example. Another interesting example of motion of center of mass. If we take Earth and Moon as two particle system, then we can assume that Earth and Moon makes a isolated system. और इन दोनों के बीच में जो internal force होगा, that is gravitational force. Earth revolve around the sun in an elliptical orbit and Moon revolve around the Earth in सर्कुलर ऑर्बिट, राइट? अब हम यहाँ बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ क्या करती है? मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून क्या कर रहा है? अर्थ को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है कि वाई अर्थ एंड मून कोलाइड विद ईच अदर, कि कभी ऐसा हो कि मून यहाँ पर आ जाए, अर्थ यहाँ से मूव करती यहाँ आ जाए और इन दोनों के बीच में क्या हो? कोलिजन हो। सो टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, हम ये मान सकते हैं कि ये अर्थ और मून क्या बनाते हैं? एक टू पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं। देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स है दैट इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ये कहते हैं सपोज दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग अर्थ एंड मून, तो वी नो दैट फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वो लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करती है। सपोज this is center of mass, right? So why these do not collide? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि टू पार्टिकल सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ है, प्रूव किया हुआ है कि एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में होता है तो एक सेंटर ऑफ मास के राइट में होगा। तो इनकी जो मोशन होगी वो हमेशा इस प्रकार से होती है कि मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास, तो ये दोनों पार्टिकल एक सेंटर ऑफ मास के राइट में और एक सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में ये इस प्रकार से मूव करते जाएंगे, राइट? एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, मतलब देयर मोशन इज अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूज टू मूव इन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ मून सिस्टम के लिए वी कैन अज्यूम दैट अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मून। सो अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारी कि जो सेंटर ऑफ मास है दैट लाइज वेरी क्लोज टू अर्थ। सो इनके लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो इस प्रकार के इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। मून अर्थ के अबाउट इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी एंड अर्थ विल रिवॉल्व अराउंड दिस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास मूव्स इन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो ये दोनों हमेशा सेंटर ऑफ मास के एक लेफ्ट में रहेगा और एक राइट में, और वी कैन से दैट देयर पोजीशन इज लाइक दिस। ये हमेशा इस प्रकार से मूव करते आएंगे और इनका सेंटर ऑफ मास यही मूव करता रहेगा। सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट और ये दोनों इस प्रकार से मूव करते आ रहे हैं, राइट? दे आर ऑलवेज ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड अर्थ एंड मून आर रिवॉल्विंग लाइक दिस। एक तरफ मून एक तरफ अर्थ, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस center of mass and center of mass is moving on this elliptical orbit. Let us take another example. Another example लेते हैं. Let us consider an object of finite size is thrown with some initial velocity at an angle with horizontal. जैसे हमने प्रोजेक्टाइल के केस में किया था, right? Projectile given angular projection. Then we know that this system will move इन ए पैराबोलिक पाथ, राइट? देखो हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास में कोई सिस्टम है फाइनाइट साइज का, इसको हमने यहाँ से थ्रो किया एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, देन इट विल मूव इन ए पैराबोलिक पाथ। अब यदि हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज दिस सिस्टम एक्सप्लोड्स एट दिस पॉइंट इन द मिड एयर, बिल्कुल हवा में जाके बीच में जाके ये एक्सप्लोड हो गया। फॉर एग्जांपल
ए फायर क्रैकर, फॉर एग्जाम्पल ए फायर क्रैकर, बच्चों वाले रॉकेट आपने चलाए होंगे दिवाली पे, हम यहाँ से ग्राउंड से रॉकेट को जलाते हैं, एयर में जाके कहीं ना कहीं पर ये एक्सप्लोड होता है, राइट। तो यहाँ पर जब रॉकेट एक्सप्लोड हुआ, देन द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इज इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड हुआ। एक्सटर्नल फोर्स क्या था? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो पहले भी लगा हुआ था, बाद में भी लगा रहेगा। अब जब ये पार्टिकल एक्सप्लोड हुआ, राइट, सिस्टम जब एक्सप्लोड हुआ, देन its particle are scattered into various direction, but its center of mass will move continuously in the same parabolic path, मतलब इसकी जो trajectory है that will not change, it will move in the same parabolic path because there are no external forces, केवल यहाँ पर क्या था? internal force, उस internal force की वजह से एक्सप्लोड हुआ, राइट। तो क्या हुआ? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरनल फोर्स की वजह से जो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, दे मे चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन, बट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स। सो वी कैन से दैट यदि पार्टिकल पहले पैराबोलिक पाथ में था, देन कंटिन्यूसली इट विल मूव इन द पैराबोलिक पाथ इवन इफ इट एक्सप्लोड्स। पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गए, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट motion of center of mass and some examples regarding motion of center of mass. Thanks and keep on watching.